Good afternoon. Hi Amit, can you unmute and answer? Yes, ma'am. Good Yeah. afternoon. How are you? Fine, ma'am. So today I think only you have joined till now. Yes, ma'am. The number of people joining are reducing with every lecture. Why do you think that is happening? Are people not submitting the assignments, like left the course or something? Maybe some people left it. Hmm. You are from which college? I'm from, Hello? yes, ma'am. I could not hear. I'm from Lingias Vidyapith, Acha. You are from which area of India? Haryana. Okay. So, like, I'm you're doing BTech. yes, ma'am. So, like, in your college, they are not offering this course, engineering drawing, or you are taking this as some extra I'm, credit. I'm just started. I'm just, uh, this month only I started my classes. Newly joined now. In the college. Yes, ma'am. Okay. So, you are taking this as a supplementary kind of thing. Yes, ma'am. So, this Because is my diploma is completed, so that's why I come. okay. So, you will be appearing for the exam that NPTEL conducts. Yes, ma'am. Mm-hmm. So you were able to, did you try solving problems on your own, like from reference Tried. books? Yes, ma'am. So you're able to solve them? Some problem I solved, some problem I got stuck. So those problems you can ask during the live sessions. If you have it right now, we can discuss, or maybe for next lecture you can come prepared with the doubt problems. Yes, ma'am. Okay, so today actually, last week, the lectures were on isometric view. So I thought maybe we could try solving some problems on drawing isometric views from orthographic projections. So I've already shared the slide. So basic thing you know about isometric projections, right? That the only distances you can plot directly as true lengths are the distances which are parallel to the isometric axis. Like if I have this if I have this horizontal line, then these are the axis and this is the perpendicular axis. So only if I have something like a rectangle which will have the edges parallel to either this side or this side, only then I can directly take these distances and plot it here. Otherwise, uh, if it is like a triangle, then in that case, like it's also discussed in the lectures, you need to draw a rectangle outside it, and then you can trace this distance from here and then mark the point, like the vertex of the triangle. And similarly for pentagon, hexagon, whatever shapes. So whichever lines are not parallel to these lines, for them you will have to track them with the help of a outer rectangular box. So you can only track the distances, like you can go up here and then come back here, and this is the point you can mark over here. But you cannot have directly, like if you take this true length of the triangle and
from this edge, like if this is A, B, and C, then if this is A and B that I marked, you cannot directly take BC as distance in the rounder and mark it here. That will not be the actual length seen here. What you have to do is you need to take this line. Am I correct? Yes, ma'am. So this construction of triangle and circle, everything has already been covered. So you can actually look at the last time's YouTube video. So in that I've taken an interesting problem which has intersection of this two solids, and we had to draw the projections of it. So first you just read the problem, try to solve it. If you don't get it, then look at the solution that I've discussed in the video. So let us come back to this here. So these are the orthographic projections that are given. So we need to draw the isometric projection for this one. So can you try to imagine? Maybe you can try to draw it in your own notebook first. By the time I make these axes and all. So do you have contact with the other students that do this course, or this is like isolated thing? No, I didn't have any contact of Hmm. any other pupils. So, no, like this discussion forum and all that NPTEL provides, do any discussions take place there? Yes. So, okay. Sorry, I can't understand No, there is a discussion forum on, what you told me. huh. So, is there a discussion happening there, or it's just idle? Did you get involved in I'm those? only idle now. Huh? Sometimes I discuss with my friends, those who are working with me here. Hmm. Okay. No, actually, the NPTEL also has discussion forum to put your doubts there, and a professor and the TA will answer your questions there as well. So actually, these NPTEL people were like, Okay. these NPTEL people were like, students usually drop. Like initially there'll be 100 students, and by the time we come to 8 or 9 weeks, like this, there is drop in number of students. So maybe they thought that it's because of, there's no actual interaction between the students and the teacher. So that's why they introduced these live sessions, so that there is some live human interaction Doubts in will the be cleared. courses, and so that your doubts can be solved. If you are comfortable in any other language also, you can say that I'm comfortable in Hindi. So if you want to discuss it in Hindi, that is also fine, but you should I'm get your also doubts clear. comfortable with Hindi, ma'am. Huh? I'm also comfortable with Hindi. हाँ, सो अगर आपको हिंदी में डाउट्स पूछने हैं, उसमें कंफर्टेबल लगता है, देन यू कैन आस्क इन हिंदी एज वेल, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम. फॉर यूनिफॉर्मिटी आई यूजुअली स्पीक इन इंग्लिश, बट जो भी डाउट्स है, कोई छोटे मोटे डाउट्स Because रहते हैं इसमें तो. ठीक है ना? हाँ. तुम वैसे काफी कंसिस्टेंटली आए हो, तुम्हारा नाम मैंने देखा था, बट लास्ट लास्ट लेक्चर में तुम नहीं आए थे. यस मैम, लास्ट दो लेक्चर में नहीं आया, क्योंकि मैं उस टाइम में वर्किंग टाइम में था, तो उस समय मैं ज्वाइन नहीं कर पाया.
अच्छा, तो तुम जॉब कर रहे हो अभी? यस मैम। ओके। अच्छा, ठीक है। इसका इमेजिन किया कुछ, कैसे कैसे होगा ये ऑब्जेक्ट? यस मैम, एक सिलेंडर है जो एक ट्रायंगल का जो ब्लॉक है उसके बीच में से पास हो रहा है वो। हाँ, तो ये जो ट्रायंगल का ब्लॉक है वो एक्चुअली ऐसे है कि यहाँ भी ट्रायंगल ही सरफेस है। तो एक ट्रायंगल का फेस यहाँ है। वो हाँ। हाँ, एक का टिप यहाँ यस है मैम। और वो ऐसे बड़ा हो रहा है। और जहाँ ये वाले सरफेस का बेस है, वहां से साइड वाले ट्रायंगल का ऐसे टिप आ रहा है। तो अभी हम लोग वो ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे आएगा। यस मैम। तो जैसे ये लाइन हो गई, तो ये लाइन, अगर तुम कोई रेक्टेंगल निकालोगे इधर, तो ये लाइन तुम डायरेक्टली यहाँ ये वाली हाइट जो है वो प्लॉट कर सकते हो। बट ये वाली जो लाइन है वो तुम डायरेक्टली प्लॉट नहीं कर सकते। ये पॉइंट को लोकेट करने के लिए तुम्हें ये रेक्टेंगल की ये जो साइड है नीचे वाली, उसका मिड पॉइंट लेके वो करना पड़ेगा। तो ये फ्रंट व्यू है, तो हम मान के चलते हैं कि हम यहाँ से देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट को, जो एरो है। तो हाँ, अभी फ्रंट व्यू में ये दिख रहा है कि ट्रायंगल है। तो हम ये जो रेक्टेंगल है वो पहले यहाँ ट्रायंगल। पे, हाँ, बोलो बोलो। यस मैम, मैं अभी वही बोल रहा था कि फ्रंट व्यू से ट्रायंगल दिख रहा है। मेरा अप्रोच तो हो गया कि जो मेरा फ्रंट व्यू बनेगा वो ट्रायंगल से स्टार्ट होगा। हाँ। बट वो डिस्टेंस जो निकालना है बैक साइड का जो है, कौन सा? वो ये वाला? कैसे डिस्टेंस है? कौन सा डिस्टेंस? तुम जो आ, सिलेंडर को हाँ हाँ। सिलेंडर को कवर करते हुए पीछे जो जा रहा है, जो टॉप व्यू में डिस्टेंस दिखाया गया है ट्रायंगल का। टॉप व्यू में ये वाला ना? ये वाला? नहीं समझी मैं। यस मैम। समझी नहीं, हाँ, तुम्हारा डाउट नहीं समझा मुझे। टॉप व्यू मैं हम्म। फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ ट्रायंगल है। हम्म। और टॉप व्यू में स्क्वायर क्यों आ रहा है? क्योंकि साइड व्यू में भी ट्रायंगल ही है। अभी एक बार रुको, एक बार ये फ्रंट व्यू लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऐसे ये वो रेक्टेंगल निकालेंगे ये वाला, तो ये क्या दिखा रहा है कि ये यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है। पर ये जो ट्रायंगल है ना, ये एक्चुअली हाँ ये प्लेन में नहीं है। क्योंकि अगर तुम यहाँ ट्रेस करोगे ना इसको, हाँ तो ये जो फेस है, ये वाला, ये वाला फेस ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल। तो देखो, एक ट्रायंगल हाँ। एक ट्रायंगल यहाँ से है ऐसे, और दूसरा ट्रायंगल यहाँ ऐसे जा रहा है जो हमें साइड व्यू में दिख रहा है। तो एक्चुअली ये ट्रायंगल यहाँ नहीं हाँ। आएगा। इसका पॉइंट का लोकेशन जो है ना, वो ये है। इसका पॉइंट का जो लोकेशन है वो ये है। समझ में आ रहा है क्या? ये जो लाइन है इधर वाली, थोड़ा दैट अच्छे इज से दैट इज दिस प्लेन विच वी सी एज हाँ। अ लाइन। तो ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली ओके ऐसे हाँ। ऐसे आने वाला है। ये एक यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे हो गया, और इसके बीच में से ये ऐसे जा रहा है सिलेंडर। अब इमेजिन हो रहा हाँ। है? ये वाला मैंने फ्रंट व्यू निकाला है। हाँ। तो ये वाला जो ट्रायंगल है वो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। और साइड व्यू में भी सेम ही ट्रायंगल दिख रहा है, बट अभी सिलेंडर ऐसे में दिख रहा है। यस सर, क्योंकि साइड व्यू से सिलेंडर पूरा नहीं दिखेगा, सिर्फ गोल दिखेगा। हाँ हाँ। तो इसमें ट्रिक वही था, ये जो ट्रायंगल और ऐसा वाला ट्रायंगल है, वो अगर तुमको समझ में आ जाएगा ये फिगर्स से,
तो फिर तुमको आ जाएगा। सिलेंडर तो इमेजिन करना रिलेटिवली इजी है, क्योंकि या तो उसका रेक्टेंगल दिखेगा, नहीं तो सर्कल दिखेगा। बट यही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जैसे लगा, वो इसलिए मैंने ये हाँ प्रॉब्लम लिया। ये इसका ट्रायंगल इधर से भी दिख रहा है और उधर से भी ट्रायंगल ही दिख रहा है, और किसी भी व्यू में, ना फ्रंट व्यू में ना साइड व्यू में, ये ट्रायंगल की ट्रू लेंथ नहीं दिख रही है, क्योंकि ये हमेशा टिल्टेड है। तो जब तुमको फ्रंट व्यू में ऐसे दिख रहा है ये ऐसे, ये यस एक्चुअली मैम। पॉइंट यहाँ नहीं है। ये अगर तुम ये वाली लेंथ जो है, ये वाली लेंथ, ये यहाँ पे प्लॉट करोगे ऐसे, तो इसके मिड पॉइंट में एक्चुअली आके इधर का पॉइंट ज्वाइन होगा ऐसे, ये इधर पॉइंट आएगा वो, इसके पैरेलल एट अ डिस्टेंस दिस विच इज हाफ ऑफ दिस बेस लेंथ, और फिर ये एक्चुअली यहाँ पे ज्वाइन होगा ऐसे। तो वो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि मैंने उल्टा काम किया। मैंने पहले ऑब्जेक्ट इमेजिन किया और उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू प्रॉब्लम बना के यहाँ पे दिया सोचने के लिए। तो ये आ गया इसका टिप इधर, तो ये फ्रंट यस व्यू में मैम, ये मैं दिख भी। रहा है। अभी इमेजिन हुआ। यस मैम। हम्म। तो इसीलिए ये टॉप में ऐसे दिख रहा है, क्योंकि ये जो दो ट्रायंगल्स है ना, ये वाले, ये वाला और उस साइड वाला पीछे वाला, वो यस दोनों तुमको कैसे दिखेंगे, ऐसे शॉर्ट एंड ट्रायंगल्स दिखेंगे। दोनों सेम। हाँ, हाँ। वो जो है इधर यस और मैम। इधर वाले, वो थोड़े से शॉर्ट हैं। टॉप से देखेंगे तो ऑलमोस्ट प्लस के साइन जैसा ट्रायंगल दिखेगा। हाँ। हम्म। तो यहाँ से अगर तुम वो ये निकालोगे, क्या बोलते हैं, ये जो लाइन है, ये वाली, ये हिडन लाइन जैसे दिखेगी। तो ये जो सरफेस है ये वाला, हाँ। वो इधर, इधर एक हिडन लाइन आएगी ऐसे, और ये ऐसे ट्रायंगल आएगा टॉप व्यू में, ये, और इसके पीछे वाला इधर वाला जो सरफेस। हाँ। तो यहाँ पे मैंने अभी हिडन लाइन दिखाई नहीं थी, अभी दिखाते हैं। तो ये जो है वो ये लाइन है, और इसका जो फ्रंट व्यू में जो विड्थ है, आ, तो वो ये है। और टॉप व्यू में हमें क्या दिखेगा, ये लाइन दिखेगी। और ये कहाँ तक लेके जाना है, तो साइड व्यू में जितना इसका विड्थ दिख रहा है, उतना हमें ये लाइन साइड दिखेगा। व्यू से कितना वेट होगा? हाँ। हाँ, क्योंकि ये पैरेलल है ना, ये पैरेलल है, इसलिए वो ट्रू लेंथ है इधर। ये साइड व्यू से दिख रहा है ना ऐसे, तो ये पैरेलल हो गई। तो यस जितना मैम। इसका लेंथ है, वो ये वाले पॉइंट का लोकस हो गया। तो वैसे मैंने ये और ये पॉइंट मार्क किया, और ट्रायंगल के ये दो पॉइंट जो थे, वो ये लाइन पे है, जो डायरेक्टली मैंने यहीं से ऐसे ले लिए नीचे। तो इसलिए वो ट्रायंगल ऐसे दिख रहा है, ये वाला सरफेस, ये वाला। ठीक है। तो ये पीपीटी पीपीटी तुम लोग को यस मिलती मैम। है जो हम लोग शेयर करते हैं। हाँ मैम, वो ऊपर वहाँ से डाउनलोड करता किया था। हाँ, तो पीपीटी अगर मिलती है तो तुम एक nptel.com बार, का। हाँ, खुद से बैठ के इमेजिन कर सकते हो। मैंने शायद आई थिंक थर्ड या फोर्थ वीक के इसमें काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स दिए थे, आइसोमेट्रिक वाले भी, कि आइसोमेट्रिक से ऑर्थोगोनल वाले निकालो और ऑर्थोगोनल से आइसोमेट्रिक वाले निकालो। तो और मैंने सब सॉल्व नहीं किए थे वीडियो लेक्चर में, तो वो तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। ये वाला इसके एक दो प्रॉब्लम मैंने किए थे स्टार्टिंग में। तो अभी एक्चुअली ये ज़्यादा रेलेवेंट है कि ऑर्थो से आइसो निकालना है, और ऑलरेडी सिखाया भी गया है कि कैसे निकालना है। तो इसको एक बार इमेजिन करके देखो, तुम अपना निकाल के देखो, फिर मैं बताती हूँ कि सही है नहीं है। एक बार ड्राइंग निकाल के तुम या तो फोटो शेयर करो, नहीं तो वीडियो ऑन करके वो पेपर दिखाना। 5-10 मिनट ओके देती हूँ, मैम। एक बार ट्राई करो, फिर मैं तब तक यहाँ एक्सेस निकालती हूँ। ओके।
तुमको क्लियरली दिख रहा है ना, ये वाला टॉप व्यू है, ये फ्रंट इमेज व्यू थोड़ा है। ब्लर है। पर लाइंस तो दिख रही है ना, ये जो है वो, हाँ, मतलब लाइन। ये टॉप है, फ्रंट व्यू है, और ये राइट साइड व्यू है। वो छोटा करने से शायद दिखे, कुछ ही नहीं दिखेगा। दिखेगी। यस। बना कुछ? सोचो सोचो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा तो है ये। मेरा ऑलमोस्ट बन गया है।
दिखाओ जो बनाया है। कैसे सोच रहे हो? क्या अब बना रहे हो? क्लियर तो नहीं है। हाँ। क्लियर तो नहीं बनाया है। दिखाई ही नहीं दे रहा है कुछ, थोड़ा स्केच यहीं से पेन। स्टार्ट किया ना तो। हम्म, नहीं, थोड़ा डार्क पेन या कुछ होगा तो। कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे, बस पेज दिख दिख रहा है। और अभी दिख रहा है मैम। तुम्हारे आइसोमेट्रिक एक्सेस कौन से हैं? ये अच्छा। बॉटम का ये रखा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। हाँ, तो वो और जो तुमने लाइंस ली हैं, तो एक्चुअली ये लाइंस जो रहेंगे वो परपेंडिकुलर रहेंगे ना। तुमने ये कौन सी ली है? फ्रंट व्यू टॉप व्यू वाली लाइंस ली है ना? वो यस मैम। या तो एक्सेस को पैरेलल चाहिए, नहीं तो परपेंडिकुलर चाहिए। तो तुम स्टार्ट ऐसे कर सकते हो, जैसे ये तीन तीन स्क्वायर का ग्रिड बन रहा है ना इधर। हाँ। हाँ, तो स्टार्ट कर सकते हो कि तुम पहले ये ग्रिड बना लो बस पूरा। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे इस एक्सेस से आ, दूसरे एक्सेस को पैरेलल ऐसे लाइन लेती हूँ। इसका तीन ले हाँ। लेंगे। एक दो और तीन। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा, ये पॉइंट और ये पॉइंट में भी सही है। और ऐसे ही मैं दूसरी लाइन अगर ले लूं इसके पैरेलल, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग तभी बनेगा जब तुम खुद से इमेजिन कर पाओगे क्या हो रहा है उधर। यस मैम। विदाउट वो, अगर तुम मेथड्स बस याद करने में लगोगे, कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। थोड़ा सा कुछ चेंज कर देंगे, एक बार इमेजिन हो गया तो तुमको प्रोसीजर भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो, ये बेस लाइन वाला अगर ग्रिड बन गया तुम्हारा, तो मेरा भी ये पॉइंट ए है, ये बी है, इसको सी मान लेते हैं। जैसे ये हो गया, ये ए बी है और ये सी है। सिमिलरली फ्रंट में ये इसके जो करस्पॉन्डिंग ये भी आएगा और सी इसी के पीछे जाएगा। सही है ना? तुम पहले क्यूब इमेजिन करो ऐसे, कोई भी क्यूब है ऐसे, तो उसमें ये ए बी और सी आएगा। अभी टॉप से देखोगे तो ए बी सी ऐसे दिखेंगे, फ्रंट से देखोगे तो ए बी सी कैसे, यहाँ ए दिखेगा, बी दिखेगा और बी के पीछे सी आएगा। तो पहले तो क्यूब इमेजिन करो ऐसे है, जो क्यूब अभी हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे अभी तीसरी जो एक्सेस आती हाँ। है इसकी, जो परपेंडिकुलर आएगी ऐसे, वो ऐसे परपेंडिकुलर आएगी। तो ये जो वर्टिकल पॉइंट है, मान लो ये एलिवेशन पे जो भी पॉइंट है, डी ई एफ जो भी आएगा, वो सब ये एलिवेशन पे आएगा। तो अभी जैसे ये वाला पॉइंट डी है तो डी यहाँ आएगा। डी हमको टॉप व्यू में तो दिखेगा नहीं, वो बी के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा इधर। यहाँ पे डी यहाँ आएगा जहाँ पे कुछ है ही नहीं। हाँ। तो भी टॉप में जैसे ये है, कुछ है ही नहीं। हाँ। हाँ, तो टॉप में जैसे ये फिगर है, तो जब तुमको यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है अलग से, इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लेन चेंज हो रहा है।
तो अब तुम यही ब्लॉक को, यही तीनों को फ्रंट से देख के देखो कि ऊपर से क्या है। यहाँ पे अलग अलग सरफेसेस होने चाहिए तीन लेवल्स पे, तभी स्क्वायर आएंगे। अगर मान लो तुम्हारे इधर ये ऑब्जेक्ट ऐसे रहता, बस ऐसे रहता, ये स्क्वायर के मतलब स्क्वायर नहीं, ये क्यूब का मैं बस ये साइड ऐसे दीवार जैसे निकाल रही हूँ। अगर ऐसे रहता तो तुम्हें टॉप व्यू में ये पूरा एक कंटिन्यूअस रेक्टेंगल दिखता। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे तीन अलग हाँ, अलग यहाँ स्क्वायर पे दिख रहे सिंगल हैं। रहता तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि तो यहाँ पे अलग स्टेप्स दिख अलग सरफेसेस हैं। स्टेप्स दिख रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली exactly। तो या तो ये एक स्क्वायर इधर है हाँ और एक स्क्वायर नीचे वाले में है, और फिर से एक स्टेप लेके यहाँ है, ऐसे हो सकता है। तो ये तुम कैसे कंफर्म करोगे? हाँ तो इसको तुम्हें साइड से देखना हाँ पड़ेगा या फ्रंट से देखना पड़ेगा। तो साइड से जब देखोगे तो ये साइड व्यू इसीलिए दिया गया है। तो साइड से जब देख रहे हो तो ये वाला ब्लॉक कहाँ दिखेगा, ये वाले सब दिखेंगे तुमको, है ना। ये जो लाइन है ये, स्टेयर स्टेप से दिख हाँ, तो मैंने अभी क्या बोला कि ये ऐसे नीचे आ रहा होगा, ये ऐसे और ये ऐसे। तो इसका साइड व्यू कैसे दिखेगा फिर? साइड व्यू ऐसे दिखता, ऐसे। बट है कैसे साइड व्यू? साइड व्यू रहा एक्चुअल में ऐसे गया, ऐसे आया, और फिर सेकंड जो स्टेप है वो ऐसे नहीं जा रही है, वो ऐसे जा रही है, और फिर लास्ट वाली स्टेप इधर आ गई। ओ, और एक यहाँ पे स्टेप है ही नहीं। तो बेसिकली ये स्टेप एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक सरफेस यहाँ है, सेकंड वाले में वो इधर स्लांट आ गया, तीसरे वाले में यहाँ स्टेप दिख गई, और पूरा दो ब्लॉक वो नीचे चला गया ऐसे। मतलब समझा अभी? हाँ या तो ऐसे 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 स्टेप रहते तो तीन ये दिखते, नहीं तो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे जाके तब तीन स्टेप्स दिख रहे हैं, है ना। तो अभी मतलब तुम्हें ये तीन ब्लॉक का ये समझा कि तीन सरफेसेस है, वो तीन सरफेसेस कैसे हैं वो साइड व्यू से तुमने इमेजिन किया। तो तभी मैंने जाके फिर यहाँ पे बोला कि ठीक है, अगर ये स्क्वायर का ये टॉप वाला एंड है, जैसे मैं यहाँ पे ये ग्रिड बनाई ना लेफ्ट वाली फिगर में, तो वैसे ही अगर मैं हाँ यहाँ पे इसका ये टॉप वाला सरफेस बनाऊं, बाप रे, ये तो मैं लाइन से ही बनाती हूँ इधर, हाथ से थोड़ा, देखो। हाँ, ये वाला बन गया इसका टॉप वाला सरफेस। तो जो भी निकालना है लाइन, वो या तो पैरेलल टू ये एक्सिस, पैरेलल टू ये एक्सिस, नहीं तो परपेंडिकुलर। अभी क्यूब है क्योंकि सब पैरेलल ही है ऑलमोस्ट सरफेसेस। तो ये वाला हो गया टॉप। तो ये इसका ये वाला एंड आ जाएगा इधर वाला, ये वाला एंड। तो अभी इधर ये जो सेम ग्रिड है ना नीचे वाला, ये हम उठा के कॉपी कर सकते हैं, सेम टू सेम। ये देखो, इमेजिन करो कि वो पूरा ग्रेड ऐसे ऊपर लेके जा रही हूँ मैं टॉप सरफेस पे। हाँ तो वो कहाँ तक जाएगा, वो जो पीछे वाला पॉइंट है, डी सामने वाला पॉइंट है जो हमारी हाईएस्ट तरफ है। पॉइंट है। हाँ, हाँ तो हाँ सही है फाइव। तो ये अभी कौन सा, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट आ गया। तो अभी यहाँ पे हमको टॉप व्यू में दिख रहा है कि ये सरफेस है, साइड व्यू से पता भी चल गया है कि इसके बाद ये जो सरफेस है इसके बाद ये ऐसे नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो हाँ तुम्हारे ऐसे, तुम बहुत सारे वो क्यूब व्यूब खेलते हैं ना, जिसमें एक कलर लाना रहता है, क्या रूबिक्स क्यूब बोलते हैं ना। तो हाँ
तो उस वाले में जैसे बहुत सारे ये रहते हैं, बहुत सारे जैसे हाँ क्यूब्स रहते हैं, तो वैसे तुम इसको भी इमेजिन कर सकते हो। तो यहाँ पे हाँ तुम्हें फिर से एक ऐसे ग्रिड लाइन जैसे बनाने पड़ेंगे। तो ये वाले सरफेस पे तो तुम्हें कोई हाँ भी पॉइंट लोकेट करना है। तो बेसिकली या तो तुम परपेंडिकुलर ऐसे नीचे आओ और फिर ये एक्सिस के अलोंग जाओ। तो अभी हमको क्या करना है, हमें ये वाला पॉइंट रीच करना है, ये वाला। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, परपेंडिकुलर एक ब्लॉक नीचे आऊंगी और ऐसे हॉरिजॉन्टली मुझे 2 ब्लॉक आना है। तो वो मैं क्या कर रही हूँ, एक ब्लॉक नीचे जाना है परपेंडिकुलरली। तो मैं यहाँ आ गई, एक ब्लॉक नीचे परपेंडिकुलर। तो वहां पे एक पैरेलल लाइन मैं निकाल लूंगी जिसके अलोंग मुझे 2 ब्लॉक मूव करना है एक्चुअली। तो ये वाला जो लाइन है, ये हो जाएगा ये वाले लाइन के लिए बेस। तो ये पॉइंट होगा ये वाले लाइन पे, ये जो डॉटेड निकाली है मैंने। और फिर एग्जैक्टली कैसे लोकेट करोगे, तो ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो 1 और 2 यूनिट इधर। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ, उसके बाद और एक यूनिट यहाँ। तो इधर से मैंने एक्चुअली परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी चाहिए थे, ना कि यहाँ से। बट हमें पहले से ये ग्रिड पॉइंट पता था, तो ये वाली लाइन के लिए मैं यहाँ से आई एक पॉइंट नीचे, और ये वाली डॉटेड लाइन के लिए मैं ये पॉइंट से स्टार्ट होके यहाँ से आई। तो अभी मुझे ये पॉइंट मिल गया जो कि ये है। तो मैं अब इसको ऐसे ज्वाइन कर सकती हूँ। तो वो मेरा ये वाला जो सरफेस है ना, ये वाली लाइन निकाली मैंने अभी इतना करके। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट तुम खुद से करोगे, ट्राई करोगे तो बन जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा बस इमेजिन करने में। तो ये समझा अभी क्या किया, कैसे ये वाला पॉइंट यस लोकेट किया। फिर इसी के पैरेलल मैं निकाल सकती हूँ अभी। हाँ, अभी हाँ, तो चल रहा है। हाँ, अच्छा है, अच्छा है, चलो। तो यहाँ से अगर मैं ये वाली एक्सिस को पैरेलल निकालूंगी इधर ऐसे, तो वो यहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, वो यहाँ भी 1 यूनिट नीचे और 1 यूनिट यहाँ से, मतलब 2 यूनिट यहाँ से हो गया, 1 यूनिट यहाँ से और 1 यूनिट यहाँ से ऐसे इंटरसेक्ट करेगा ये वाला लाइन, जो मैं यहाँ से ए बी के पैरेलल निकालूंगी। तो ये पूरा तुमको ऐसे स्क्वायर में या क्यूब में या क्यूबॉइड में पूरा तुमको ऐसे ग्रिड टाइप से ही चलना पड़ेगा। तो अभी ये वाला सरफेस लेते हैं। तो इसमें क्या है, ये तो आ ही गया, ये वाली एज जो है, ये वाली, ये तो आ ही गई है हमारी। तो अभी हमको क्या करना है, ये वाला पॉइंट लोकेट हाँ, करना है। वो तो ये पॉइंट हो गया सीधे सीधे। एक्सेस शेप बनाना, हाँ। हाँ, और दूसरी लाइन यहाँ फिर से निकाल लेंगे। जाएगा। तो ये सरफेस बन गया हमारा। और ये कैसे है, हाँ, तो अभी अभी क्या है, फ्रंट में तो तुमको तीनों जो व्यूज है ना, टॉप साइड फ्रंट, वो साथ में तुमको कंपेयर कर करके देखने पड़ेंगे। तो फ्रंट में क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक स्क्वायर है और यहाँ पे कंटिन्यूअस है ये जो है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई सरफेस चेंज नहीं हो रहा है, वो यस। कंटिन्यूअस एक ही है। तो मतलब हमने जो ये ड्राइंग किया ऐसे वाला, कि यहाँ पे पूरा एक ऐसे आ रहा है, वो सही है। यहाँ पे एक सरफेस मिला और हाँ यहाँ एक सरफेस मिल गया हमको, ये वाला। फिर हम लोग स्टेप लेके ऐसे स्लैंट लेके नीचे आए और फिर ये फिर से एक फ्लैट, और फिर ये पूरा दो में फ्लैट ही है। अभी ये वाले का देखते हैं, इसका क्या है। तो ये टॉप में कैसे दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दो अलग अलग ये सरफेसेस, इसका ड्रॉ कर। अलग अलग सरफेस है, एक स्टेप है ये, स्टेप नहीं स्लैंट है। हाँ, तो वो स्लांट कहाँ से तुमको पता चला कि कौन सा स्लांट है कौन सा क्या है, वो कैसे इमेजिन किए। अभी तो मुझे वो तो टॉप व्यू, मैंने राइट व्यू से दिख रहा है। इसका दिखेगा तुम्हें राइट व्यू से स्लैंट है कि क्या है। ये कहाँ आएगा ब्लॉक, ये टॉप व्यू में कहाँ आएगा बताओ। ऐसे बताना, लाइक टॉप, सॉरी, अच्छा। ये टॉप व्यू है। राइट व्यू में, सॉरी, फ्रंट व्यू में, ये जो स्क्वायर है इसके टॉप लेफ्ट में टॉप राइट में कहाँ आएगा ये वाला ब्लॉक।
ये जो मैंने अभी टॉप येलो का से जो येलो वाला जो बहुत है वो वाला बोल रहा है ना? हाँ, येलो वाला जो हाँ, ब्लॉक है टॉप में यहाँ दिख रहा है, ठीक है। वो हाँ, अभी फ्रंट में कहाँ दिखेगा वो? बी पॉइंट जो है उस तरफ आएगा ना। बी पॉइंट है, सही कह रहे बी हो। पॉइंट जो है ना उसकी तरफ आएगा। हाँ, तो वो एक्चुअली पीछे की तरफ है, जैसे ये जो है वो ये क्यूब का ना ये वाला पार्ट, सॉरी कुछ ज्यादा ही आगे आ गया, ये नहीं, ये जैसे हो गया, बस इतना सा पार्ट हमको दिख रहा है, ये पीछे वाला जो है ना, तो जैसे मैंने पहले ये वाली दीवार जैसे निकाला था ये वाला, वैसे अभी जो मैंने अभी येलो किया है वो ये वाला पार्ट है क्यूब का, ऐसे। तो वो हमको हाँ, पूरा, हाँ सही कह रहे हो, बी के ऐसा। पीछे में दिखेगा। तो इसका जो स्लांट है नहीं है, वो हमको ये व्यू में पता चल रहा है कि ये यहाँ पे स्लांट है ऐसे, हाँ, ठीक है ना। राइट साइड व्यू में तुमको अगर यहाँ पे ऐसे स्लांट है, राइट साइड व्यू में किसका स्लांट दिखेगा, मान लो ये वाला जो है ना, ये अगर सरफेस ऐसे स्लांट रहता, ऐसे ना होके ये अगर स्लांट रहता, तो वो तुमको यहाँ तो से वो दिखेगा। फ्रंट व्यू का दिखता। हाँ, फ्रंट व्यू में तुम्हें, फ्रंट व्यू का दिखता, हाँ। फ्रंट व्यू में फिर से स्क्वायर ही दिखेगा। अगर तुम्हारा क्यूब का, नहीं, फ्रंट व्यू में जो साइड का जो स्लैंट है यार। अच्छा ठीक है, ये बताओ, ये वाला जो स्लांट है, ये वाला ऐसे, वो कौन से व्यू में दिखेगा? यहाँ से मान लो देख हाँ, रहे हो, फ्रंट व्यू में दिखेगा या साइड व्यू में दिखेगा? ये ऐसे स्लांट है इधर, कर पा रहे हो इमेजिन, ये मैंने जो अभी ब्लू से निकाला। वो तो साइड व्यू में दिखेगा ना, राइट साइड का व्यू जो हाँ है। सही कह रहे हो। तो अभी जो इसका जो स्लांट है जो मैंने येलो का पूछा, वो तुमको फ्रंट व्यू में दिखेगा ना, स्लांट है कि नहीं है। साइड व्यू में, हाँ, वो तो फ्रंट व्यू में दिख रहा है। हाँ तो फ्रंट व्यू से तुम बोल बोल सकते हो कि यहाँ पे कैसे स्लांट है। अगर ये स्लांट ऐसे टाइप का रहता ना जो मैंने ब्लू में निकाला है, तो तुम राइट हैंड साइड व्यू से बोल सकते थे कि स्लांट है कि नहीं है। बट अभी हमको स्लांट दिख रहा है फ्रंट व्यू में, हाँ, तो इसलिए वो स्लांट कैसा है, वो स्लांट ऐसा ना होके इस तरफ है, ऐसे, ऐसे स्लांट है, तभी ना वो तुमको फ्रंट व्यू में दिखेगा। तो ऐसे सब ऐसे कोरिलेट कर करके कि हाँ देखो ये जो ब्लॉक है वो ये क्यूब के ये पीछे वाले साइड में है, तो अभी तुमको फ्रंट व्यू में कहाँ दिखेगा, तो फ्रंट व्यू में यहाँ दिखेगा, पीछे साइड में। तो पीछे साइड में जब दिख रहा है, तो वो वाला ये स्क्वायर ऐसे स्लांट है और इधर फ्लैट है। तो ऐसे सब तुमको तीनों फिगर साथ में देख देख के तुमको आइडिया लगाना पड़ेगा कि नहीं ये पूरा एक ब्लॉक नहीं है, क्योंकि यहाँ भी बहुत पॉसिबिलिटी थी, ये वाले तीन जब स्क्वायर दिख रहे हैं, कि ऐसे 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 बस सीधा सीधा स्टेप है। स्टेप्स हो गया, हाँ। हाँ, तो तब भी तुमको टॉप व्यू में ये वाला सरफेस स्क्वायर दिखेगा, ये वाला सरफेस स्क्वायर दिखेगा और ये वाला सरफेस स्क्वायर दिखेगा, जैसे ये यहाँ दिख रहा है ना। तो अभी तुम साइड व्यू हाँ, फ्रंट व्यू देखोगे, तो साइड व्यू में जैसे साइड व्यू यहाँ का हो गया, तो साइड व्यू में ये क्या बोल रहा है, ये ब्लॉक है, साइड व्यू में ये ब्लॉक कहाँ दिखेगा, ये वाले लाइन में दिखेगा टॉप ना। वाले पीछे साइड चला जाएगा। पीछे साइड नहीं ना, ये तो यही प्लेन से देख रहे हैं ना हम लोग, तो ये राइट कॉर्नर में ये तीन स्टेप्स हाँ, दिखेंगे तुमको, हाँ, सही है। हाँ, 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 नहीं सही लग रहा तो मैं फिर से बताती हूँ, ऐसे हाँ हाँ मत बोल दो नहीं समझा तो। हाँ, समझ आया। समझ गया ना। तो अभी इसमें तुमको ये वाली रो यहाँ दिख रही है ऐसे, तो इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ ये जो स्क्वायर है ये कंप्लीट है, यहाँ पे कोई स्टेप नहीं है। और ये जो है ये फिर से स्क्वायर दिख रहा है इसका, तो इससे भी, इससे तुम बस यही बोल सकते हो कि स्टेप कैसा है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इसके बाद कोई स्टेप नहीं है।
इससे भी यही बस कंक्लूड कर सकते हो, और वो साइड व्यू से ही तुम्हें पता लगेगा कि यहाँ पे क्या है। ये देख के ना तुम्हारा स्टेप ऐसे भी रह सकता था, ऐसे, ऐसे के बाद बस ऐसे, दूसरा तीसरा है ही नहीं। तो इसीलिए सब कोरिलेट कर करके वो थोड़ा सा इमेजिन हाँ, करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ वाला जो सरफेस है वो कहाँ है? आ, ये वाला पार्ट है ना, क्यूब का पीछे वाला पार्ट है, और वो स्लांट है ऊपर से। तो अभी हमको स्लांट निकालने के लिए फिर से ये वाले जो पॉइंट है ना वो लोकेट करने पड़ेंगे। तो तुम फिर से वही करोगे, यहाँ से 2 पॉइंट यहाँ आना है और 1 पॉइंट नीचे जाना है। तो अभी ये जो एक्सिस है ये ए बी के पैरेलल है। तो तुम कहाँ से कहाँ आओगे? मान लो ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट एफ है, ये ई है। तो तुम्हें डी से एफ की तरफ 2 कदम आगे बढ़ना है, यहाँ आओगे, फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। और तुमको नीचे कितना जाना है? तुम्हें नीचे जाना है 1 यूनिट बस। तो वो आ जाएगा ऐसे। तो ये तुम्हारा हो गया, ये वाले जो स्लांट है ना ये वाला, इसका लोअर पॉइंट, ये स्लांट का ये लोअर पॉइंट तुमने लोकेट कर लिया। तो तो तुम ये अच्छे से एक बार निकाल के देखो अपनी कॉपी में, क्योंकि यहाँ मैं वो पैड वैड यूज करती हूँ ड्राइंग के लिए, तो इतना अच्छे से बनता नहीं है कंप्यूटर में। तो ये, यस। हाँ ये जो फिगर है, हाँ, और मेरा हिंदी भी ज्यादा माइंड मत करना क्योंकि मैं हूँ महाराष्ट्र से, तो मेरी हिंदी थोड़ी कच्ची है। तो यूपी वालों नहीं यार, जैसे ठीक है। यूपी वालों जैसे आप और तुम वाला मेरे में थोड़ा कम है बोलने का। तो वो माइंड मत करना ज्यादा। तो ये देखो मैंने यहाँ पे ये निकाल के रखा है, तो तुम वो कोई प्रॉब्लम। हाँ, तो तुम बाद में तुम एक बार खुद इमेजिन करके देखो ये वाला, और फिर देखना कि करेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। इसमें और एक प्रॉब्लम है, और 2-3 प्रॉब्लम है एक्चुअली नीचे में। तो वो तुम अपने से ट्राई करो एक बार। ये तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें इमेजिनेशन का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जितना करोगे उतना अच्छा है। ओके। ठीक है फिर, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया। तो ये पीडीएफ अभी आप डाल देंगे? हाँ, ये वाला मैं अपलोड कर दूंगी। इसमें क्या बोलते हैं, ठीक है। तुमको कहाँ ड्राइव वाइव में आता है वो? यूट्यूब के जहाँ आते हैं वहीं आता है ना ये शायद। हाँ हाँ। ठीक है, तो मैं ये अभी, जी हाँ। हाँ ये अभी सब इसका फाइनल जो ड्राइंग है ना उसके साथ मैं अपलोड कर दूंगी। तो अगली बार एक बार ट्राई करना ये। अगर नहीं बन रहा है तो हम लोग ये इसके नीचे भी जो प्रॉब्लम दिए हैं ना मैंने ये वाले, एक ये है और एक ये है, तो ये दो ट्राई करना अगली बार तक, फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक। चलो। और वो जो तुम बोल रहे थे कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं बने हैं अगर किसी बुक के, तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं अगले क्लास में, जो भी डाउट है। तो ठीक है। हाँ, और अगर पॉसिबल है तो या मैं तो मुझे वो पॉइंट प्रॉब्लम्स करके थोड़ा, रख लूंगा। हाँ बोलो। मैं पॉइंट आउट करके रख लूंगा, फिर बताऊंगा। हाँ, और मैं प्रिंट आउट करके रख लूंगा, फिर बताऊंगा। क्या बोल लिखा के, नहीं है। क्या करके रखोगे? मैं लिखा नहीं हूँ। पॉइंट आउट करके रख लूंगा, तो उसके बाद हाँ हाँ, बात पॉइंट आउट करके नेक्स्ट रख बार। लो, और अगर पॉसिबल है तो एटलीस्ट क्वेश्चन मुझे भेज के रखो, ताकि बेसिक जो उसका ज्योमेट्री रहेगा ना वो मैं यहाँ शेप से बना के रखूंगी, क्योंकि नहीं तो उसी में 15 मिनट चला जाएगा वही बनाते बनाते। तो यहाँ पे मैं ईमेल मैं आईडी आपको दिया है कैसे कि शेयर करूंगा? ईमेल आईडी मैं पीपीटी में लिख के रखती हूँ, तो उसमें सेंड कर देना। आईएससी का ही ईमेल आईडी है, उसी पे यू कैन सेंड इट। अभी अभी जो स्क्रीन शेयर हो रहा है ना ये सानिका p@iisc.ac.in, ये लिख लो, फिर मैं यहाँ से हटा दूंगी। जो प्रॉब्लम्स है बस वो भेज के रखना, जो डाउट है
वो सामने सामने डिस्कस कर लेंगे, बट बेसिक ज्योमेट्री जो है वो मैं बना के रख सकती हूँ। कर लिया कॉपी वो ईमेल आईडी? यस मैम। ठीक है फिर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी डाउट है क्लियर कर लो। यस। ठीक है फिर, चलो चलिए मैम। बाय बाय। थैंक यू। चलो फिर मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ।